some of us, especially Narendra and me, have been part and parcel of this organization 92 onwards. It was formed in 91. Chundur massacre took place, and then we revived it in 92, and then we were founding members. So it's really a matter of privilege. SN Pradhan sir were also here. He was senior. They have played their very important role. And then rest is history. So UDSF as a nursery of our activism, of our ideology. And when we are celebrating this special occasion, 91st birth anniversary of Manavar Kansiram Sahab, who is so special, so different, that for last 75 years or after Baba Sahab, you don't see many people of that stature in Indian politics. So I congratulate you all on this special occasion and congratulate the organizers for organizing this special session with the friends and colleagues and Sir Haq Sahab and so many youngsters. Manavar Kansiram Sahab's contribution to Indian politics is entirely phenomenal. Let me begin with few of his important to me and to you also. He was very fond of saying, कोई किसी को राज ना दे है जो ले है निज बल से ले है. कोई किसी को राज ना दे है जो ले है निज बल से ले है. That explains the whole ideology, the strategy, the philosophy. गुरु ग्रंथ साहब को वो कोट करते हैं. उसके बाद जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो उनका पूरा का पूरा फिलॉसफी है, मुझे जो टॉपिक दिया गया है पॉलिटिकल इक्वालिटी का, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड social engineering of Kansiram Sahab. When we say political equality, so the thing which comes to my mind, I am a student of political science. So politics means what? Politics means the deciding power. You must be knowing David Easton, authoritative allocation of values, or Laswell, who gets what, how, and when. So politics decides everything. And if politics decides everything, you have to be politically conscious, you have to be politically dominant. Otherwise, we know politics also means, politics means study of influential and the influenced. The one who influences and the one who get influenced. जो आदेश दे रहा है और आदेश ले रहा है, दोनों की पॉलिटिक्स है. आदेश लेने वाले की भी पॉलिटिक्स है और आदेश देने वाले की भी पॉलिटिक्स है. तो आप कमांडिंग पोजीशन में हैं या ओबे कर रहे हैं, ओबीडियंस में हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है. कांसीराम साहब का जो पूरा का पूरा दर्शन है, उनकी पूरी की पूरी जो लाइफ हिस्ट्री है, वो इस ओबीडियंस को कमांड में चेंज करने की है. आप जो पैसिव रिसिपिएंट हैं, बाकी लोग आपको आदेश दे रहे हैं, उस आदेश को कैसे, अभी काजल साहब जिस बात को कह रहे थे कि भाई लेने वाले से देने वाला बनना है. हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण हमें देना है. ये 80s में वो बात कर रहे थे. सो इस तरीके से पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हम सब इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, किस तरीके से पॉलिटिक्स जीवन के हर क्षेत्र को या हर स्फीयर को डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है. उसका सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है. इसके लिए हम बाबा साहब का जो एक सेमिनल वर्क है अनटचेबिलिटी पे, उसमें वो कहते हैं कि अनटचेबिलिटी क्या है. इज इट ए सोशल प्रॉब्लम?
He says no, untouchability is not a social problem. Untouchability is a pure political problem. Why it is a political problem? Because politics decides who gets what. Politics decide who will be the rulers, who will be the ruled. Politics decide your level of education. Politics decides your level of rights. Politics decides your level of duties. And when you see the untouchability, or to a larger extent the caste system itself, it becomes clear that it's nothing but division of rights and duties. कुछ लोगों को सिर्फ राइट्स मिले हैं और अधिकतर लोगों को ड्यूटीज मिली हैं. सिर्फ ड्यूटीज ही नहीं मिली हैं, उनको डिसेबिलिटीज भी मिली हैं. अनटचेबल सेज डिसेबल्ड. डिसेबल्ड मींस दोज हु हैव बीन मेड डिसेबल्ड. वो ये नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है कि वो कर सकते थे, लेकिन एज ए पनिशमेंट उनको ये, देन ही इज वेरी क्लियर कि भाई अनटचेबिलिटी इज नथिंग बट ऑलमोस्ट लाइक ए पनिशमेंट, लाइक वॉर प्रिजनर्स. जैसे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आप युद्ध बंदी बनाते हैं और उनको सबको कैद तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप उनको कुछ समय बाद सरेंडर कराते हैं, या उनसे पूरा का पूरा जो मैकियावेली का पूरा सिद्धांत है किस तरीके से उसको कोलोनाइज करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को खत्म करके, उनके लीडरशिप को खत्म करके, उनके सिस्टम्स को खत्म करके आप पूरा. सो अनटचेबिलिटी का पूरा प्रॉब्लम बाबा साहब क्लियरली कहते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके द्वारा आपके पॉलिटिकल राइट्स को ध्वस्त कर दिया गया, पॉलिटिकल राइट्स को खत्म कर दिया गया, आपको परमानेंट पनिशमेंट दिया गया. Not to have education, not to have, means in three important terms we can say, not to have power, prestige and prosperity. Power, prestige and prosperity as strategic resources, और पूरा सिस्टम आपका फिर कोलैप्स कर जाता है. और क्योंकि लंबे समय की बात है तो हालांकि इस पे काफी कुछ विवाद है कि कितने लंबे समय की बात है. बाबा साहब तो लगभग 2000 साल पुरानी बात बताते हैं इसको, लेकिन नई स्टडीज जो है वो वहां तक खींच के नहीं लेके जाती हैं. मानवर कांसीराम साहब भी कहते हैं कि बस 200 साल काफी है, 200 साल से पीछे जाने की जरूरत नहीं है. और उसको जस्ट एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि 13वीं शताब्दी तक हमारे पास अच्छे खासे वर्ल्ड रिनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, यूनिवर्सिटीज थी, 15-20 यूनिवर्सिटीज थी, और वो आप ही ने बनाई थी, सब किसी दूसरे ने नहीं बनाई थी. अगर वो सब आपने बनाई थी तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप उस समय पे भी अनटचेबिलिटी के शिकार होंगे. आपने बनाई थी, आप चला रहे थे उनको, चाहे वो चाहे नालंदा है, चाहे विक्रमशिला है, चाहे उद्दनपुरी है, चाहे पुष्पागिरी है, या जगदल्ला है, वल्लाभी है. ये सारी यूनिवर्सिटीज जो है 10, 11, 12, 13वीं शताब्दी तक काम कर रही थी. तो सीधी सी बात है यहाँ पे चल रही होंगी. या दूसरा एक छोटा सा उदाहरण इसको इस रूप में देख सकते हैं कि हम कहते हैं कि जो पेशवा का काल था वो बहुत भयंकर काल था, खासतौर पे अनटचेबल कम्युनिटीज के लिए. ये बात सही है कि उस समय पे पनिशमेंट शायद बहुत सीवियर दिया जा रहा था, पनिशमेंट टू द सोशल क्राइम्स और द पॉलिटिकल क्राइम्स. लेकिन ये भी सही है कि उसी समय पे आपने कोरेगांव का युद्ध जीता था. उस समय पे आपके हाथ में हथियार थे, उस समय पे आप इतने बलशाली थे, इतने ताकतवर थे. तो जो वो बात बताने का प्रयास किया जाता है कि सब कुछ खराब खराब सा था, ऐसा नहीं है. बहुत सारी चीजें आपके पास उस समय तक भी थी. और हम जानते हैं कि 1947 तक भी बंगाल में बुद्धिस्ट शासन काम कर रहा था. चेरो शासन आप जानते हैं कि 1875 तक 57 तक काम कर रहा था. तो इतने सारे, और ये पूरा का पूरा जो गोंडवाना एरिया है उसको अगर आप देखेंगे तो वहां तो लगभग पूरे समय में 1947 तक ही किसी न किसी रूप में आपके कुछ जो हमारे समूह हैं उनका शासन चल रहा था. तो इस चीज को थोड़ा सा इस रूप में समझने की भी जरूरत है, क्योंकि जब हम सीधे 2500 साल कह देते हैं तो उससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है कि 2500 साल से आप हार ही रहे, बात इतनी खराब नहीं है. एक्चुअली एक जो काजल साहब कह रहे थे, ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म का एक युद्ध चल रहा है लगातार. उसमें कभी हम हार जाते हैं, कभी वो जीत जा रहे हैं, कभी एक क्षेत्र में हम हार गए, कभी दूसरे क्षेत्र में जीत गए. अगर सब कुछ पुष्यमित्र शुंग पे ही खत्म हो गया था तो फिर हर्ष के समय पे इतना विशाल साम्राज्य कैसे था? क्योंकि हर्ष के समय तो था वो पूरा का पूरा, और वो लोग कहीं अचानक तो खत्म हो नहीं सकते हैं. इस तरीके से चीजें आपकी चलती बढ़ती हैं, या उसको थोड़ा सा समझ के जरूरत है. क्योंकि एक दुश्मन की रणनीति ये भी है कि वो आपको डिमोरलाइज करता है,
वो आपको हमेशा डिस्करेज करता है। और व्हेन ही इज रिपीटिंग 100 टाइम्स एंड वी आर रिपीटिंग 1000 टाइम्स दैट वी आर लॉस्ट, वी आर लॉस्ट, वी आर लॉस्ट, देन बुद्धास कि जो जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। हम आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, बहुत सारे हम में से, कि भाई अब कास्टिज्म खत्म हो गया। आप कहेंगे आप कैसी बात कह रहे हैं? संविधान आपका कह रहा है कि नहीं, कास्टिज्म खत्म है, लेकिन हम उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो एक स्ट्रे इंसिडेंट कहीं नजर आता है उससे ऐसा लगता है कि पूरी कम्युनिटी को हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम ये मानते हैं कि नहीं ये खत्म है, हमारा जो मनोबल है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। वी कैन नॉट स्पीक फ्रॉम मार्जिन्स फ्रॉम JNU, वी आर स्पीकिंग फ्रॉम द पावर सेंटर्स। पर्सपेक्टिव का चेंज कर, ऑक्सफोर्ड से लोग मार्जिन से बोल रहे हैं कि भाई स्पीकिंग फ्रॉम दम। ऐसे कैसे होगा? आप जब सर दुनिया की सबसे पावरफुल जगह पे हैं तो आपको तो पावर पर्सपेक्टिव से बोलना पड़ेगा। पावर सेंटर्स से आप बात कर रहे हैं, तब जाके उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो नीचे हैं या जिनके पास अभी उस तरह के सिस्टम्स नहीं काम कर रहे हैं या जो वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर उनको आप ये कहेंगे कि हम भी मार्जिनल हैं, हमारे साथ भी क्लास में कभी टीचर ऐसे पूछ लेता कर देता, तो उनके मन में ये बात है यार क्या बेकार की बात है, फिर तो बेकार ही होगा वहां तक पहुंचने का मामला। हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको सेलिब्रेट करने की जरूरत है। सो पॉलिटिकल इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन, in terms of representation, in terms of having access to all decision making bodies। और ये माननीय कांसीराम साहब का बहुत महत्वपूर्ण मैं समझता हूं कि इंटरवेंशन है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, टू मेक इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लेजिटिमेट। राजनीतिक लोकतंत्र को संवैधानिक वैधता प्रदान करने का या संवैधानिक वैधता देने का माननीय कांसीराम साहब का एक हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशन है पिछले 75 साल में। अगर देखें अदरवाइज तो जो हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रहा है या अभी भी बहुत हद तक है बहुत सारे क्षेत्रों में, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जस्ट शुम्पीटर का जो क्लासिफिकेशन है सुपरफिशियल है। उसमें कुछ ज्यादा तत्व नहीं है, कुछ ज्यादा सब्सटेंस नहीं है। वो सिर्फ प्रोसीजरल बना हुआ है कि 5 साल में इलेक्शन होते हैं, आप चुनाव करते हैं, उसमें किसी व्यक्ति को जिता देते हैं और मामला ऐसा ही हो जाता है। लेकिन इस पूरे के पूरे दौर में अगर आप देखें, और खासतौर पे जो बहुजन समाज पार्टी का जो एक्सपीरियंस रहा है कांसीराम साहब के थ्रू, जो एक्सपेरिमेंट रहा है, उसमें देखते हैं कि ये पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव भी हो सकती है। ये पॉलिटिक्स जो है बहुत सब्सटेंशियल भी हो सकती है अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। और यहां पे कांसीराम साहब जो फॉर्मूला हमें देते हैं, उनका एक अपना फॉर्मूला सामाजिक परिवर्तन का है। जो हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी जिन 2 चीजों की बात काजल साहब कर रहे थे, ब्राह्मणिज्म एंड कैपिटलिज्म। ब्राह्मणिज्म इज सिनोनिमस विद इनइक्वालिटी, विद डोमिनेंस, विद डिस्क्रिमिनेशन, और उसको खत्म करना है। जो सिस्टम इस तरीके से खड़ा हुआ है, वर्टिकल सिस्टम खड़ा हुआ है, उस वर्टिकल सिस्टम को हॉरिजॉन्टल बनाना है। दिस इज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज सोशल चेंज। सो दिस वर्टिकल सिस्टम नीड टू बी ब्रॉट डाउन एंड an alternate political system or social system or cultural system or economic system is to be created which is horizontal। ये सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन का माननीय कांसीराम साहब या बहुजन फिलॉसफी में मतलब ही ये है कि किस तरीके से कास्ट सिस्टम को ध्वस्त करके जो कि हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल, जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल बनाया जाए। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और सोशल चेंज। दूसरा कांसीराम साहब अपने लिए जो मतलब आंदोलन के लिए दिशा निर्धारित करते हैं या एम निर्धारित करते हैं, वो है इकोनॉमिक इमेंसिपेशन का। इकोनॉमिक इमेंसिपेशन मींस जो कैपिटलिज्म का जो मोनोपोली है, जो कार्टेल है, जो सारे के सारे रिसोर्सेज चंद परिवारों में कंसंट्रेट हो गए हैं, उसको किस तरीके से डिसेंट्रलाइज किया जाए, उसको किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अभी उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा हमारा मूवमेंट आगे नहीं बढ़ा है या उसमें बहुत ज्यादा हमारा अभी गुंजाइश है, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के लेवल पे चीजें थोड़ा आगे बढ़ रही हैं, कुछ ना कुछ चीजें आगे जा रही हैं। ये जो आपने टॉपिक में जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की, ये सोशल इंजीनियरिंग का मामला थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग तो खासतौर पे पॉलिटिकल साइंस वाले साथी जानते होंगे
कि सोशल इंजीनियरिंग तो एक रिविजनिस्ट टाइप कंसेप्ट है. सोशल इंजीनियरिंग मीन्स पीस मील चेंजेस, स्लो ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल चेंजेस, और खासतौर पे उस तरह के सिस्टम में जहां पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इन प्लेस, वहां पे आप छोटे मोटे चेंज करते रहें टेक्नोलॉजी के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू. वहां पे कांसीराम साहब का सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, कांसीराम साहब का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है. इट्स नॉट इवन सोशल रिफॉर्म. सोशल रिफॉर्म भी, क्योंकि सोशल रिफॉर्म तो गांधीयन स्ट्रेटजी है, सोशल रिफॉर्म तो ब्राह्मणिकल स्ट्रेटजी है. ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, नॉट इवन सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस में भी आप समझ रहे हैं कि सोशल जस्टिस में इट्स डिपेंडेंट ऑन द गुडविल ऑफ द रूलर, कि वो न्याय दे या ना दे. लेकिन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में सब बराबर के हैं. वो रेडिकल है, वो रिफॉर्मिस्ट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसमें सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट है. सोशल क्योंकि कास्ट सिस्टम नहीं है और इकोनॉमिकली इमेंसिपेटेड है, इसलिए द एम ऑफ द मूवमेंट इज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट mere cosmetic social justice or social reform, which is from other side of the affairs. इसमें फिर कांसीराम साहब पॉलिटिकल इक्वालिटी को, जो कि मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी इज पावर इक्वालिटी, इस पावर इक्वालिटी को किस तरीके से एग्जीक्यूट करने का प्रयास करते हैं, तो उनका एक आइडिया है. वो आइडिया है या principle that the need into desire into strength is equal to change. Need, desire, strength is equal to change. The caste victims have need for change. Except the Brahmins, everybody has need to change the system, because all are in hierarchy lower. Even the second, third and fourth also, untouchables of course had the most vigorous need for changing this system. So need is the first condition, but need is not sufficient. Untouchables for hundreds of years are in the need, but change is not coming. Why? Because they do not have desire. Why they do not have desire? Then there are sociological, psychological and other studies, but the fact is desire is lacking. Kaziram Sahib says desire can be generated through proper counseling, through proper education, प्रबोधन. आप डिजायर क्रिएट कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई आपको जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, तो कौन व्यक्ति जानवर रहना चाहेगा. मिनटों सेकंडों में आपके अंदर डिजायर पैदा हो जाएगी. That's what काशीराम साहब की जब आग लगी तो एकदम जंगल में आग की तरह फैल गई, जबरदस्त तरीके से वो विचारधारा फैली वामसेफ का जब वो निर्माण कर रहे थे. और कहते कि नीड एंड डिजायर आर नॉट सफिशिएंट कंडीशन, दो दे आर नेसेसरी. यू नीड टू हैव स्ट्रेंथ ऑल्सो. पूरे समाज में नजर घुमा के देखते हैं कि भाई ये तो ज्यादातर भूखे नंगे लोग हैं, स्ट्रेंथ कहां से आएगी. तो स्ट्रेंथ का एक ही सोर्स था, वो था एजुकेटेड एम्प्लॉयज. जो भी छोटी मोटी समाज के पास स्ट्रेंथ थी वो एजुकेटेड एम्प्लॉयज के पास थी. एंड देन ही ट्राइड टू करेक्ट द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स और इनडिफरेंस ऑफ दिस एजुकेटेड एम्प्लॉयज, और उनको कन्विंस करना शुरू करते हैं. 64 to 78, 14 years. इन 14 ईयर्स में देश के लगभग हर जिले में गए हैं. एक बार बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों से मिले, कर्मचारियों से मिले, और एक पूरा नेटवर्क तैयार किया, दो विदाउट रजिस्ट्रेशन और विदाउट स्ट्रक्चर. एक नेटवर्क तैयार किया, और उस नेटवर्क के सहारे जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरे मूवमेंट का रहा है, इस पूरे प्रोफेशन का रहा, वो रहा पे बैक टू द सोसाइटी. That whatever positions we have acquired in government jobs or education we have not acquired this position because of our individual worth or capability or merit.
we have acquired this position in the name of community. The positions were declared, advertised not for Mr. A, B, C or D. They were declared for particular community, and as member of that community we have applied and got सेलेक्टेड. अदरवाइज हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन वो लोग तो नहीं आ पाए जब तक ये रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन का इशू नहीं था. सो वी आर हियर टू रिप्रेजेंट दिस कम्युनिटी. और ये जो सेंस उन्होंने डेवलप किया बहुत बड़े स्तर पे हिस्ट्री को नजर रखते हुए, बाबा साहब और हमारे सभी महानायक नायिकाओं के आंदोलन को नजर रखते हुए, उनके त्याग और बलिदान का हवाला देते हुए, तो एक अच्छा खासा कैडर देश में डेवलप हुआ. और यही खासियत उसकी है, उस आंदोलन की, कि भाई ये ऑफ द एम्प्लॉइज, बाय द एम्प्लॉइज, बट नॉट फॉर द एम्प्लॉइज. इट इज फॉर द सोसाइटी. जो ट्रेड यूनियंस हैं, जैसे मान लिया टीचर्स एसोसिएशन है, टीचर्स एसोसिएशन इज बेसिकली फॉर द टीचर्स वेलफेयर. किसान एसोसिएशन इज बेसिकली फॉर किसान वेलफेयर. बट वामसेफ इज डिफरेंट because it is not for the employees who are part of this organization or this movement, or rather mission, but they are for the society. So pay back to society का ये concept जो है वहां से जर्मिनेट नहीं होता. बाबा साहब इसको शुरू से ही इसकी बात करते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रगल उनका उस चीज को है, लेकिन कांसीराम साहब इसको एक मूर्त रूप देना शुरू करते हैं, आगे बढ़ाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें सत्ता प्राप्त करनी है. I remember when maybe somewhere in 84-85 he made this statement which again Kajal साहब was saying कि हमारा अंतिम उद्देश्य भारत पे शासन करना है. When he says our ultimate aim is to rule India, then it's not a small statement. Especially आप 84 के आसपास की जो दुनिया थी भारत की, उसके बारे में सोचिए. उस समय पे, क्योंकि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन से पहले का समय है, और जो जैसी अभी थोड़ा बहुत मामला नजर आ रहा है, ऐसा बिल्कुल वहां पे नहीं था. बहुत कम लोग यूनिवर्सिटीज में थे, बहुत कम लोग हायर पोजीशंस पे थे. तो इस तरह की जब बात उन्होंने कही, इस तरह की बात रखी, तो समाज में एक इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट हुआ उस चीज का. एंड देन वी हैव दिस कंसोलिडेशन, मोबिलाइजेशन बड़े स्तर पे हुआ और एक बड़ा तबका तैयार हुआ. तो जो डिजायर, जो नीड, डिजायर और स्ट्रेंथ हमारी कर्मचारियों का है, क्योंकि उनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी था, थोड़ा बहुत उनके पास समय भी था, और थोड़ा बहुत उनके पास जो है समझ भी बनी हुई थी. तो टैलेंट, ट्रेजर एंड टाइम, तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है और फिर ये मूवमेंट बढ़ता जाता है. आप देखते हैं कि किस तरीके से अगर पिछले 75 साल में भारत में कोई मूवमेंट डायनामिक है, अभी भी डायनामिक है, तो वो अम्बेडकराइट मूवमेंट है. वो आपका अपना मूवमेंट है. और इसमें कांसीराम साहब इसको अगर इस रूप में देखें कि जो हमारे महापुरुष हैं, खासतौर पे गौतम बुद्धा, देखें वो एक फिलॉसफी के रूप में या एक फिलॉसफर के रूप में सामने आते हैं. किसी भी आंदोलन की 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको एक फिलॉसफी चाहिए होती है. फिलॉसफी जनरली एब्स्ट्रैक्ट एजम्पशंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट लॉज हैं, जहां पे हम सिर्फ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. बुद्धा जो कह रहे हैं कि रेशनल है, जो ह्यूमन है, जो वैज्ञानिक है, वो बौद्धिक है. उस सारे के सारे मूवमेंट को वहां से लेके और बाबा साहब तक आते आते हम देखें, जो भी बीच में हमारे हजारों की संख्या में ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं, उन्होंने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को बाबा साहब एक कॉन्क्रीट आइडियोलॉजी के रूप में सम अप कर देते हैं. ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उसको निर्णायक फॉर्म देते हैं वो. सो द फिलॉसफी बिकम्स आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी बहुत कॉन्क्रीट होती है, वो बताती है किस तरीके से आगे बढ़ना, किस तरीके की चीजों को करना, क्या हो रहा, सारा का सारा. तो आपका पूरा वर्ल्ड व्यू उसमें आ जाता है. बाबा साहब कॉन्क्रीट तरीके से इसको देते हैं. लेकिन बाबा साहब क्योंकि इतना ज्यादा उस समय पे प्रॉब्लम था, और आइडियोलॉजी के लेवल पे पूरा उसको डेवलप कर देते हैं, पूरे कंटूर्स क्लियर कर देते हैं. लेकिन सिर्फ फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी से ही काम नहीं चलता है. You have to have a definite strategy to implement philosophy and ideology, then only you can have change. कांसीराम साहब जो है वो स्ट्रेटजिस्ट के रूप में, द मास्टर स्ट्रेटजिस्ट के रूप में सामने आते हैं, जो अंबेडकरवाद को या जो बौद्धिकवाद है, जो बहुजनवाद है, उसको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं. और ये उसके लिए बहुत सारी वर्केबल हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, अलग अलग तरीके से चीजों को लागू करने का प्रयास करते हैं. और पॉलिटिक्स की मतलब आप लोगों को पता होगा, वो कहते हैं कि वी हैव टू हैव से सोशल एक्शन,
जो DS4 है वो सोशल एक्शन के रूप में है। वी हैव टू हैव लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन। लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन जब DS4 ने कहीं 2-4 जगह पे चुनाव लड़ा था, 84 से पहले की बात है, दिल्ली और हरियाणा में लड़ा था। एंड देन ही वेंट फॉर फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल एक्शन। BSP फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल एक्शन के रूप में सामने आती है। और फिर वो कहते हैं कि ये जो है social action, limited political action, full-fledged political action, and the last stage comes durable change, permanent durable change, durable change and cultural control. That is, I'm missing, durable change and control that he calls cultural, and that is permanent. That is what enlightenment is. That is what प्रबुद्ध भारत is. So इस तरीके से वो आंदोलन की जो 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनकी उस ट्रिनिटी को पूरा करते हैं, बुद्धा, अंबेडकर एंड कांसीराम। सो स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं कि चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, चाहे वो कल्चरल इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, चाहे हमारी जो सोशल स्ट्रेटजी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी है, उसमें उनका जो बहुत महत्वपूर्ण, या मैं समझता हूं कि शायद सबसे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है वो बहुजन का कंसेप्ट है। ये बहुजन का कंसेप्ट क्या है और इक्वालिटी से इसका क्या है, 4-5 मिनट में मैं अपनी बात को इससे पूरा करूंगा कि ये बहुजन का जो आइडिया है, इसको आप चाहें तो फिलॉसफी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, बिकॉज इट गिव्स यू सो मेनी डायरेक्शंस, सो मेनी आउटिंग्स। इसको आप सीधे सीधे स्ट्रेटजी मान सकते हैं, क्योंकि परमानेंट प्रोग्राम है ये। बहुजन समाज को इकट्ठा करना है, बहुजन समाज का निर्माण करना है। आप इसको पॉलिटिकल मैनिफेस्टो मान सकते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो मान सकते हैं। समाज को जो तोड़ के रखा गया है, जातिगत आधार पर जो बिखेर के रखा गया है, उनको इकट्ठा किस तरीके से किया जा सकता है। समाज, एक जो आंदोलन उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे चलाया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये समाज बनाने का जो कंसेप्ट है वो बहुजन समाज बनाने का ही कंसेप्ट है। और जब आप बहुजन समाज बनाते हैं तो जो अपने आप को बहुत बड़े आज तुर्रम खा समझ रहे हैं, जो अब मेजोरिटी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, वो सीधे सीधे माइनॉरिटी में आ जाते हैं। अब गेल ओमवत की बहुत महत्वपूर्ण स्टडीज इस पे हैं, आप पढ़ सकते हैं उनको, दलित विजन्स और डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इस तरीके से वो बताने का प्रयास करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स है जिसमें बहुजन चीज सामने आती है, वो जो मिथोलॉजिकल मोनोलिथ है उसको ध्वस्त कर देता पूरा का पूरा। द मोमेंट यू से बहुजन, somebody becomes अल्पजन, and they are creating a kind of a euphoria, एक सोशल बाबा साहब जिसको कहते हैं कि कॉम्युनल माइनॉरिटी क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। पॉलिटिकल मेजोरिटी तो कुछ नहीं है, पॉलिटिकल मेजोरिटी तो 5 साल में चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर उस पॉलिटिकल मेजोरिटी को कॉम्युनल माइनॉरिटी आपने कन्वर्ट कर दिया तो दैट बिकम्स सॉर्ट ऑफ परमानेंट मेजोरिटी। उसमें फिर मेजोरिटी टायरनी आ जाएगी, वो बचना मुश्किल हो जाएगा, जो कि खतरा आज हमारे सामने नजर आ रहा कई बार उस चीज से। तो ये जो आइडिया ऑफ बहुजन है वो अपने आप में बहुत स्पेशल है। इसको आप डे टू डे पॉलिटिक्स में, डे टू डे हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अभी जैसे देखिए कि बहुजन, जब हम रिवोल्यूशनरीज की बात करते हैं तो वो खासतौर पे, क्योंकि कांसीराम साहब ने इस पूरे आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाया, तो वो ज्योतिबा फुले साहब की बात करते हैं, साहूजी महाराज की बात करते हैं, वो नारायणा गुरु की बात करते हैं, पेरियार साहब की बात करते हैं और बाबा साहब की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम 5 रिप्रेजेंटेटिव सोशल रिवोल्यूशनरीज को लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि औरों के बारे में बात नहीं की है, औरों के बारे में बहुत सारी बात की है और ऐसे ऐसे लोगों को बताया समझाया कि जो वहां के खुद के लोग भी नहीं जानते थे। जैसे अयोध्या दास के बारे में लोग नहीं जानते थे, कृष्णा वडियार के बारे में नहीं जानते। अयोध्या दास तमिलनाडु से हैं, कृष्णा वडियार मैसूर से हैं, तो बहुत सारे लोगों के, वो कहते हैं कि लगभग 200 लोग हैं इस तरह के, लेकिन 5 लोगों को लेकर चलते हैं। लेकिन ये 5 लोग जो है आप देखें, इनमें से तथाकथित शेड्यूल कास्ट तो एक ही है सिर्फ,
4 लोग तो इसमें बैकवर्ड क्लासेस के हैं। तो ये जो मूवमेंट जो बिखरा पड़ा था, वो कहते कि बहुजन आंदोलन जो हर राज्य के भी किसी क्षेत्र विशेष में बिखरा पड़ा था, उसको राष्ट्रीय फलक पे स्थापित कर देते हैं। जैसे ही आप ज्योतिबा फूले का नाम लेते हैं, हमें पता चलता है कि अरे उनको तो बाबा साहब ने फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन कहा है। लेकिन वो महाराष्ट्र में ही थे, उत्तर प्रदेश में पता पड़ा कि एक यूनिवर्सिटी बन गई उनके नाम पे, उत्तर प्रदेश में पता पड़ा कि उनके नाम पे एक जिला बन गया, साहूजी महाराज के नाम पे जिला बन गया, साहूजी महाराज के नाम पे मेडिकल कॉलेज जो है लखनऊ का, उसका नाम हो गया था। बाद में समाजवादी पार्टी ने उसको दोबारा किंग जॉर्ज कर दिया, आप पता नहीं वही है कोई और नाम है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये आंदोलन जो छोटे मोटे क्षेत्रों में बिखरा पड़ा था या बिल्कुल भुला दिया गया था, उसको राष्ट्रीय फलक पे स्थापित कर देते हैं माननीय कांशीराम साहब, और एक मैं समझता हूं कि लिविंग डायनामिक बहुजन मूवमेंट आपका क्रिएट हो जाता है। अब हमें पता है कि हमारी कल्चर क्या है। हमारी कल्चर ये है कि आप हमारे ऊपर अगर पत्थर भी फेंकते हैं, आप अगर हमारे ऊपर गोबर भी फेंकते हैं, तब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। सावित्रीबाई फुले का मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो ये सारी चीजें जब तक हमें पता नहीं चलेंगी, तब तक हमारे पास कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। किसी भी कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अगर उसको वहां तक जाना है कि वी हैव टू बी द रूलिंग क्लास ऑफ दिस कंट्री और आवर अल्टीमेट एम इज टू रूल इंडिया, देन यू मस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस, you must have that strategy, you must have that philosophy, you must have that ideology which Kanshiram Sahab actually played for us all through his life। 40 years उनका रहा। इसमें आप इसको एजुटेशन मान लीजिए, इसको आप आइडेंटिटी मान लीजिए, इसको आप पॉलिटिक्स मान लीजिए, इसको आप एजेंडा मान लीजिए, इसको आप असर्शन मान लीजिए। आप जब आज यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस हॉल में मान्यवर कांशीराम साहब के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट मीन्स एन असर्शन ऑफ ए पब्लिक इन ए पब्लिक प्लेस। आप जैसे जैसे इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि एक बहुजन मूवमेंट एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल लिटरेरी मूवमेंट इस समय बन चुका है, इतना जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी, बाबा साहब ने जिस बात को कहा कि ब्राह्मणिज्म कितना भी मजबूत हो जाए या कितना भी ताकतवर हो जाए, वो हमारे सामने रुक नहीं सकता, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत महान है। हमारा जो है उद्देश्य इतना महान है कि वो कभी भी अपनी उस गैर बराबरी, अन्याय, अत्याचार की व्यवस्था को ज्यादा दिन तक नहीं रख सकता। और ये चीज आज क्लियर हो गई है पूरे देश के अंदर। इस समय पे आप लोग को गर्व होगा कि पूरे देश के अंदर इस समय पे लगभग 5 लाख शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं। 5 लाख आउट ऑफ 15 lakhs। जो 4 करोड़ शिक्षक, 4 करोड़ छात्र यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, उसमें से 2 करोड़ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स, ओबीसी के हैं। मैं कहता हूं कि 5 लाख भले ही ना हो, मैं कहता हूं कि 2 करोड़ भले ही ना हो, लेकिन उस 5 लाख में से 50,000 जरूर बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब और ज्योतिबा फूले की मानस संतानें हैं। उन 2 करोड़ में से जरूर 20 लाख जो है बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम साहब की मानस संतान है। ये आंदोलन पीछे जा नहीं सकता, ये जा नहीं सकता किसी भी तरीके से। जस्ट आपको खड़े होकर अपना नाम बताना है, सिर्फ नाम बताना है। जैसे ही आप अपना नाम बताते हैं, उसकी आधी ताकत आपके अंदर आ जाती है, तुरंत कांपने लगता है। वो कहते हैं अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो घबराया हुआ है, आपसे घबराया हुआ, क्योंकि ये जो टीचर्स यहां पे आए हैं, ये टीचर्स सिर्फ व्यक्ति के रूप में नहीं आए हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए और अपने महानायक नायिकाओं की जो डेमोक्रेटिक जो फिलॉसफी है, जो उनकी जो आइडियोलॉजी है, उस रेशनैलिटी के साथ, उस डेमोक्रेटिक इंटेंट के साथ क्लास ले रहे हैं। तो यहां पे सबका डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, सबका रेशनलाइजेशन हो रहा है, सबका प्रबुद्धिकरण हो रहा है, सब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तो 5 लाख तो बहुत बड़ी संख्या है, इसीलिए घबराहट है, इसीलिए इन इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने का प्लान भी है। लेकिन कांशीराम साहब कहते थे कि भाई, जैसे उन्होंने कहा कि गांधी बहुत महान व्यक्ति थे, गांधी बहुत महान व्यक्ति थे, वो मनु और तुलसी की परंपरा के बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन मेरी महानता उनकी महानता को मिट्टी में मिलाने में है। सो वो प्रयास करें। बाबा साहब कहते हैं कि इट मे बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द मास्टर टू बी अवर मास्टर्स, बट हाउ कम इट इज इन अवर इंटरेस्ट टू बी देयर स्लेव।
So we have to revolt, we have to stand up, we have to live the philosophy our forefathers have created for us. The moment we start living as self-confident being, किसी को ना तो किसी को धमकाना, ना किसी को डराना, ना किसी से धमकना है, ना किसी से डरना है, सीधी सी फिलॉसफी है। प्यार से रहिए, प्यार से रहने दीजिए, और जैसे ही आप ऐसे करने लगते हैं अपनी ह्यूमन पर्सनैलिटी को क्लेम कर लेते हैं। बाबा साहब जो कहते हैं कि अवर एम इज टू क्लेम और रिक्लेम अवर ह्यूमन पर्सनैलिटी, अपने मानवीय होने की जो पहचान है उसको हमें पुनः हासिल करना है। और जैसे ही आप मानवीय बनते हैं तो जानवर जो हैं वो रास्ता छोड़ के अलग हो जाते हैं, उनको गर्व महसूस होने लगता है। इवन आपके, मैं नहीं कहता कि कोई बहुत लोकतंत्र में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास हुनर है, आपके पास ताकत है, आपके पास हिम्मत है, तो वो आपके पैरों की धूल अपने सर पे लगा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अपने आप को योग्य बनाइए, अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपने आप को मानवीय बनाइए। जितना हम मानवीयकरण करेंगे अपना, पॉल फरेरो की बात के साथ बात खत्म करता हूं कि जो वो कहते हैं कि भाई ये जो डिह्यूमनाइजेशन इन्होंने किया है, मासिस का जो डिह्यूमनाइजेशन किया है, इस डिह्यूमनाइजेशन में कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का डिह्यूमनाइजेशन नहीं कर सकता। उन्होंने अगर डिह्यूमनाइजेशन किया है तो खुद भी एनिमल बन गए हैं, उनका भी डिह्यूमनाइजेशन हुआ है। और जैसे जैसे हम अपना ह्यूमनाइजेशन क्लेम करेंगे उनको भी जानवर से इंसान बना देंगे। तो इन द लिबरेशन ऑफ द ऑप्रेस्ड lies the liberation of the oppressor also. That is what इंडिया को बहुजन समाज और बहुजन फिलॉसफी और बहुजन क्रांतिकारियों की जरूरत है, जो ना सिर्फ अपने आप को लिबरेट करेंगी बल्कि पूरे देश को ब्राह्मणवाद से लिबरेट करेंगी, और मैं कहता हूं कि जो ब्राह्मणिकल्स हैं उनको भी लिबरेट करेंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।